ہم اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ بظاہر اچھی اور بہترین نوکری اس حد تک گندی اور حرام کی کمائی والی بن سکتی ہے، میں نے نہیں سوچا تھا، اور نہ ہی کبھی میں نے ایسے کسی کام یا نوکری کی توقع کی تھی۔ بولنے والا تو اپنی سنا کر جا چکا تھا، مگر میرا دماغ سنسنا رہا تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آیا مجھے خاموش رہ کر اپنے روزگار پر توجہ دینی چاہیے یا پھر فوراً ہی اپنی نوکری پر لات مارتے ہوئے مالکان کے ذریعے عربی شیخوں کو حقیقت بتا دوں، جو کہ خاصی شرمناک حقیقت تھی، اور بولتے ہوئے بھی مجھے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ آج مجھے اندازہ ہوا تھا کہ عربی شیخ کی بیویاں کیوں کم عمر ہندو لڑکے کام کے لیے مانگتی ہیں۔ کل تک میں جن عورتوں کے حسن اور وقار سے بے پناہ متاثر تھا، آج مجھے انہی عورتوں سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں جیسے اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب تک میں نے جتنا بھی کمایا ہے وہ سب کا سب حرام کا پیسہ ہے، حالانکہ آج سے پہلے میں اس حقیقت سے لا علم تھا، کیونکہ اب تک میں نے جتنے بھی ہندو لڑکے عربی شیخ کی بیویوں کے پاس کام کے لیے بھیجے تھے، وہ سب اچھی زندگی جی رہے تھے، بلکہ وہ تو اپنی زیادہ تنخواہ کا سن کر ہی خوش ہو جاتے تھے اور اپنا کام دل لگا کر کرتے تھے۔ اسی لیے میں نے کبھی اس بات پر توجہ نہیں دی تھی کہ آخر عربی شیخ کی بیویاں صرف ہندو لڑکے ہی کیوں مانگتی ہیں، اور وہ بھی صرف 14 سال کے چھوٹے لڑکے۔ میری نوکری کے شروع کے ایام میں جب مجھ سے اس بات کی ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ ہمیں گھر کے کاموں کے لیے ہندو اور چھوٹی عمر کے لڑکے چاہیے، تو تب میں چونکا ضرور تھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ ان امیر عربی شیخوں کے گھروں میں بھی پارٹیز اور فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ ساری رات چلتے ہیں، اور ان میں ناچ گانا بھی ہوتا ہے، تو ایسے ماحول میں مسلمان لڑکے ملازمت کرتے ہوئے پریشان ہو سکتے تھے، جبکہ ہندو لڑکے تو آسانی سے ایسے ماحول میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ بس یہی سوچ کر میں بھی اپنا کام دل جمی سے کرنے لگا اور ان کی ڈیمانڈ پوری کرتا تھا۔ لیکن آج اس لڑکے کی حالت دیکھ کر اور اس کی الجھی بے ترتیب باتوں نے مجھے بہت پریشان کیا تھا، اور میں اس کی حالت سے کام کر رہ گیا تھا، کیونکہ جب وہ آیا تھا تو وہ بہت ہنسمکھ اور صحت مند لڑکا تھا، لیکن ایک ماہ بعد آج جب اس کو دیکھا تو وہ مجھ سے بالکل پہچانا بھی نہیں گیا تھا۔ وہ بہت پریشان اور الجھا سا تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ دباؤ کا شکار تھا، اور بات کرتے ہوئے بھی بہت گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا تھا کہ وہ اپنی مالکن سے بہت زیادہ ڈرا ہوا اور ستایا ہوا ہے، اور ایک بات اور بھی میں نے محسوس کی کہ وہ واپس اپنے مالکوں کے گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ جانے کا سن کر ہی بہت بے چین ہوا تھا۔ جب میں نے اس سے اس کی حالت کی وجہ پوچھنی چاہی تو پہلے تو وہ اچھا خاصا گھبرا گیا اور ٹال مٹول کرنے لگا، لیکن جب میں نے اس کو تسلی دی اور کہا جو بھی پریشانی ہے وہ مجھے کھل کر بتا سکتا ہے، تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ بھائی جان، میں اس عورت کے پاس کام نہیں کر سکتا۔ سب لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہندو لڑکوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ کوئی بھی شریف مرد ہو وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائے گا اور شرم اور ذلت کے مارے ڈوب مرنا پسند کرے گا۔ مجھ سے بھی یہ سب برداشت نہیں ہو رہا، اور نہ ہی مجھے ایسی تنخواہ اچھی لگتی ہے۔ آپ کو آپ کے رب کا واسطہ ہے، آپ مجھے اس عذاب سے نکالیں۔ میں اس روز کی اذیت سے تھک چکا ہوں۔ مجھے اس عورت سے شدید نفرت اور وحشت محسوس ہوتی ہے۔ میں اس سے دور رہنا چاہتا ہوں، مگر ایسا نہیں کر پاتا۔ میں چاہ کر بھی اس عورت کے چنگل سے نہیں بچ سکتا۔ میں اب بس یہی دعا کرتا ہوں کہ عربی شیخ گھر سے باہر کہیں نہ جایا کرے، کیونکہ جب وہ عربی شیخ گھر سے کہیں جاتا ہے تو بہت دنوں کے لیے جاتا ہے، اور اس کے جاتے ہی میری روح فنا ہونے لگتی ہے، اور اس کے بعد جب تک وہ عربی شیخ واپس گھر نہیں آتا میں شدید ذہنی اذیت میں مبتلا رہتا ہوں۔ ایسی زندگی مجھے کبھی بھی اچھی نہیں لگتی تھی، اور نہ ہی کبھی ہمارا ایسا ماحول رہا، اور نہ ہی کبھی ہم نے ایسا کچھ دیکھا یا جھیلا ہے۔ میں عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور بس رزق کی تلاش میں آیا ہوں۔ میں نے تو بس یہی سنا تھا کہ سعودیہ میں ہر کام کی بہت اچھی تنخواہ ملتی ہے، تو میں آرام سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکتا ہوں، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ کمانے کے چکر میں اور زیادہ کمائی کا لالچ دے کر مجھ سے کیا کام لیا جائے گا، اور وہ بھی زبردستی دھمکا کر، ورنہ میں کبھی بھی یہاں نہیں آتا۔ چاہے مجھے کم کما کر جیسے تیسے گزارا کرنا پڑتا، لیکن اب میں بہت ذلت کی کمائی کھا رہا ہوں۔ اب میں بہت ذلت کی کمائی کما رہا ہوں، اور مجھے آپ سے بھی گلہ ہے کہ بنا کوئی چھان بین کیے
आप कैसे हम कम उम्र लड़कों को सब्ज बाग दिखाकर इस दलदल में फंसा सकते हैं? आखिर हम भी तो किसी के बेटे हैं, हम भी इज्जतदार लड़के हो सकते हैं, चाहे हमारा दीन धर्म मुख्तलिफ हो, मगर इज्जत तो सबकी ही होती है। इस तरह किसी को जलालत की जिंदगी देने का आपको कोई हक नहीं है। अभी इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलता, इसकी मालकिन की गाड़ी इसको लेने आ गई और गाड़ी को देखकर इसका रंग खतरनाक हद तक पीला पड़ गया था। करीब था कि वो बेहोश होकर गिर पड़ता। वैसे भी वो बेतहाशा कमज़ोर हो गया था और बहुत बीमार लग रहा था। गाड़ी को आता देखकर वो मुझे उम्मीद भरी और मिन्नत भरी नज़रों से देखने लगा, लेकिन ड्राइवर को देखकर इसकी ज़ुबान पर ताला लग गया था। वो बस आस भरी नज़रों से मुझे देख रहा था, लेकिन मैं इस तरह इसको रोक नहीं सकता था। ये हमारी एजेंसी के रूल्स के खिलाफ था, इसलिए मैं भी मजबूरन खामोश रहा और इसको नहीं रोक सका था। हालांकि इसकी बेतरतीब बातों ने मुझे अंधेरों में धकेल दिया था और इसकी आधी अधूरी बातों से भी बहुत कुछ वाज़ेह हो चुका था मुझ पर, लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि इससे खुलकर बात करूं और सब कुछ तफसील से जान सकूं कि आखिर अरबी शेख की बीवियां क्यों और क्या करती हैं। खैर, मैंने दिल पर जबर करके इस लड़के को भेज दिया। मैंने देखा कि जब मैंने इसको जाने को कहा तो इसकी आंखों से आस के दिए एकदम से बुझे थे और इसकी आंखों में नमी उतर आई थी और वो पहले से भी ज़्यादा निढाल सा हुआ था, यूं जैसे इसकी उम्मीद तोड़कर मैंने इसको मरने के लिए वापस भेजा हो। मुझे इसकी हालत पर बहुत तरस आया था, मगर मैं भी मजबूर था, इसलिए फ़िलहाल नज़रअंदाज कर गया। इस लड़के के चले जाने के बाद मैं कितनी देर बेयकीनी और दुख की कैफियत में जकड़ा कहीं जमकर बैठा रहा। मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठकर कंपनी की तरफ से मिले गए अपने क्वार्टर की तरफ चला जाता। इस लड़के की हालत और बातें मुझे शदीद दुख में मुब्तला कर गई थीं और इनका कहना भी बिल्कुल वजह था। मुझे इन बातों की तहकीक करनी चाहिए थी कि अरबी शेख की बीवियां कम उम्र हिंदू लड़कों पर ही क्यों पुरजोर इसरार कर रही हैं, मगर मैंने अपनी मर्जी की बात सोची और अब तक न जाने कितने लड़कों को इस अंधेरे कुएं में धकेला था। काफ़ी देर सख्ते की हालत में बैठे रहने के बाद फिर मैंने अपने मुर्दा कदम घसीटते हुए अपने क्वार्टर का रुख किया और घर पहुंचते ही मैंने गुस्ल खाने में जाकर शावर खोला और इसके नीचे ठहर गया। मैं खुद को पुरसुकून करना चाहता था ताकि अगले कदम के बारे में कुछ सोच सकूं, मगर इस लड़के की हालत और नीम मुर्दा आवाज़ ने मुझे बुरी तरह से जकड़ लिया था और मैं चाह कर भी इन बातों से खुद को निकाल नहीं पा रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि कंपनी के मालिक से बात करके अरबी शेख तक ये बात पहुंचाऊं, मगर फिर खुद ही अपने ख्याल को झटक दिया कि एक तो ये बहुत मायूब बात थी और फिर मालूम नहीं वो शेख मेरी बात को समझता या फिर अपनी अना का मसला बना लेता और मेरे साथ साथ वो लड़का भी मुसीबत में पड़ जाता। इसलिए मुझे जो भी कदम उठाना था बहुत सोच समझ कर उठाना था, क्योंकि इस लड़के की तरह मैं भी इस मुल्क में परदेसी था और यहाँ के लोगों के घर के हालात का अंदाज़ा मुझे हरगिज़ नहीं था। मैंने वो दिन और रात बहुत बेचैनी में गुजारे थे। रह रह कर मुझे इस मासूम लड़के की फिक्र हो रही थी। साथ ये वहम भी सता रहा था कि कहीं वो खुद को कुछ कर ना ले, क्योंकि इसके ख्याल में आज इसकी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ चुकी थी और ये ख्याल ही मेरी रूह फरसा था। मैंने सारा वक्त अल्लाह से दुआएं करते गुजारा कि वो लड़का जिंदा सलामत रहे और इसको कुछ ना हो, ताकि मैं इसके लिए कुछ कर सकूं। फिर जैसे ही अगले दिन का सूरज तुलू हुआ, मैं इनके घर जाने के लिए तैयार होने लगा। इस लड़के को अपने पास कैसे लाना है वो सारा लाया अमल मैं तरतीब दे चुका था, इसलिए अब गड़बड़ की कोई गुंजाइश बची ना थी। और फिर 2 घंटे की मसाफत तय करने के बाद मैं इस अरबी शेख के घर के दरवाजे पर मौजूद था, जहां वो लड़का काम करता था। मैंने एजेंसी का हवाला देकर अंदर आने की इजाज़त मांगी तो मुझे फ़ौरन अंदर बुला लिया गया। मुझे घर में देखकर वो लड़का बुरी तरह से घबरा गया था। शायद वो यही समझा था कि मैं इसकी हकीकत इसकी मालकिन को बताने आया हूँ। मैंने मुश्किल से इसको नज़रअंदाज किया और सामने बैठी इस घर की मालकिन की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो खास से बेतरतीब हुलिये में मौजूद थी और इसकी सुर्ख डोरियों वाली आंखों से अंदाज़ा हो रहा था कि जैसे वो सारी रात शराब पीती रही थी। मैंने इसके हुलिये से नज़रें चुराईं और अपने आने का मुद्दा बयान किया तो मेरी बात सुनकर जैसे वो भड़क उठी थी और बहुत खूनख्वार लहजे में मुझसे बात दरहकीकत धमकियों पर उतर आई थी। फिर मैंने बमुश्किल अपना लहजा नॉर्मल रखा और इससे कहा कि मैम, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है, हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमने इन लड़कों की फैमिलीज़ को भी जवाब देना होता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इस लड़के को मेरे साथ भेज दें और जब तक ये तंदुरुस्त नहीं हो जाता आपके पास एक और लड़का काम के लिए रुकेगा।
मगर वो मेरी बात नहीं सुन रही थीं और अपनी बात पर बज़िद थीं कि वो इस लड़के को नहीं जाने देंगी। तब मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा कि इसको घर के काम के लिए 14 साल का हिंदू लड़का ही क्यों चाहिए? वो किसी जवान और मुसलमान मर्द से भी अपने घर के काम ले सकती हैं। तो मेरे इस अचानक सवाल से वो गड़बड़ा गई और बौखलाहट में बोली कि नहीं, जो बड़ी उम्र के मर्द होते हैं वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, जबकि ये छोटे लड़के हर बात आसानी से मानते हैं और फिर हिंदू लड़के सारा वक्त काम ही करते हैं, जबकि मुसलमान लड़के नमाज और इबादत के नाम पर बहुत वक्त ज़ाया करते हैं। अपनी तरफ से उसने बेहतरीन वजाहत दी थी, मगर वो सही मानों में घबरा गई थी और खामखा इतनी वजाहत दे रही थी। फिर मैंने मज़ीद इसको डराने के लिए कहा कि फिर आप लड़के को मेरे साथ भेज रही हैं या मैं शेख साहब से बात करूं, क्योंकि लड़के की हालत ठीक नहीं है और मुझे इन लड़कों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो मेरी बात सुनकर निहायत मरे मरे लहजे में इसने जाने की इजाज़त दी थी, मगर जाने से पहले वो लड़के को आंखें दिखाकर इशारों में पाबंद करना नहीं भूली थी। वो लड़का बहुत खुश हुआ था और जैसे ही मैं इसको लेकर अपने क्वार्टर पहुंचा तो वो एक ही बात कर रहा था कि क्या वो घर जा पाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि इसको वापस जाना पड़े, और ऐसा वो हरगिज़ नहीं चाहता था। मैंने इसको पुरसुकून किया, खाना खिलाकर सुला दिया, क्योंकि वो शक्ल से ही बहुत टाइम का भूखा लग रहा था और आंखों से भी दिखाई दे रहा था कि वो बहुत रातों से नहीं सोया था। इसके खाना खाते ही सोने पर मैंने पहली फुर्सत एक अक्लमंद और बड़ी उम्र का लड़का इस अरबी शेख के घर भेज दिया कि जब तक इनका पुराना मुलाजिम तंदुरुस्त नहीं हो जाता ये लड़का इनके यहाँ काम करेगा। और यकीनन इस औरत ने मजबूरन इस नए लड़के को बर्दाश्त किया होगा और बेचैनी से अपने पुराने मुलाजिम के लौट आने का इंतज़ार कर रही होगी। अब मैंने बेचैनी से इस लड़के के जागने का इंतज़ार करना शुरू किया, क्योंकि मैं हकीकत जानना चाहता था। लेकिन वो लड़का शायद वाकई बहुत रातों से नहीं सोया था, तभी वो शाम के बाद जागा था। मैंने इसको फ्रेश होने को कहा और ख़ुद रात के खाने की तैयारी करने लगा, और फिर जब वो नहा कर आया तो मैं खाना बनाकर टेबल पर लगा चुका था। पहले दिनों की निस्बत अब वो काफ़ी संभला हुआ लग रहा था और खुश भी शायद। इसको फिर से ये उम्मीद लग गई थी कि मैं इसको घर भेज दूंगा, और मैंने वाकई मजबूत इरादा कर लिया था कि कम से कम इस लड़के को मैं या तो इसके घर भेज दूंगा या फिर कोई अच्छी सी मुलाजमत ढूंढ कर दूंगा, ताकि इसकी कमाई का जरिया भी ना रुके और इस घर में जो अजियत परेशानी सही थी इससे भी बचा रहे। खाना खाने के बाद फिर मैंने इस लड़के से कहा कि अब वो मुझे खुलकर बताए कि आखिर इस घर में ऐसा क्या होता है। तो उसने जो कुछ मुझे बताया वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बताने लगा कि भाई वो बहुत ही बदकिरदार और गंदी औरत है। अपने शौहर के घर से चले जाने के बाद वो रोज़ रात को मर्द अपने पास बुलाती है और शराबें पीकर इनके साथ गलत काम करती है, और वो हम हिंदू लड़कों को इसलिए चुनती है कि हमारा धर्म इन कामों को गलत नहीं मानता और ना ही हमें इसके किसी भी काम से कोई मसला होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये सब गंदे काम मेरे सामने करती है और मुझे मजबूर करती है कि मैं सारे वक्त में वहाँ मौजूद रहूँ और इनके गिलासों में शराबें डाल डाल कर इनको पेश करता रहूँ। वो ये सब कुछ अपने शौहर से छुप कर करती है। जब वो अरबी शेख घर पर होता है तो वो बिल्कुल बदली हुई होती है, और जैसे ही वो अरबी शेख अपने कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर चला जाता है तो वो औरत अपनी असलियत पर उतर आती है और रोज़ नया मर्द इसके पास मौजूद होता है। शुरू शुरू के दिनों में उसने मेरे सामने कुछ ऐसा नहीं किया, बल्कि वो मुझे मेरा ख्याल रखती थी और मुझे जेब खर्च के लिए पैसे भी देती थी। फिर जब इसने जी भरकर अपनी इनायत मुझ पर कर ली तो तब इसने अपनी असलियत मुझ पर वाज़े कर दी। वो चाहती थी कि मैं रातों में आने वाले मर्दों को बहुत होशियारी से इस तक पहुंचाऊं और मालिक के आने जाने की टाइमिंग पर भी नज़र रखूं, और इन मर्दों के आने पर इनकी मेहमान नवाजी भी करूं और अय्याशी और फहाशी के कामों को भी चुपचाप देखता रहूं। और जब मैंने इस काम को करने से मना किया और कहा कि मैं मालिक को बताऊंगा, तो वो मुझे धमकियां देने लगी कि अगर मैंने भूल कर भी इसको मना किया या इसका काम किसी को भी बताया तो वो मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाएगी, और ये भी कि मैंने अरबी शेख की गैर मौजूदगी में इसकी बीवी की इज्जत पर हाथ डाला है। और चूंकि मैं हिंदू लड़का हूँ तो मालिक मेरी बात की बजाय अपनी बीवी की बात पर यकीन करेगा और मेरे हाथ कटवा कर मुझे हमेशा के लिए जेल में कैद करवा देगा। तब मैं इसकी धमकियों से डर गया और चुपचाप इसका कहना मानने लगा, मगर वो सब अपनी आंखों से देखना और बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल और तकलीफ देह है, और शरीफ मर्द के लिए तो ये डूब मरने के मकाम के बराबर होता है कि वो ऐसे गलत काम ना सिर्फ देखता है बल्कि इस काम पर पर्दा भी डाले हुए है और इन गलत काम करने वालों का साथ भी दे
और फिर रात गुजार लेने के बाद वो सुबह मुझसे अपनी टांगों और बाजुओं की मालिश भी करवाती है। मेरे लिए इस घर में रहना किसी जहन्नम में रहने के मुतरादिफ है। मुझे इस औरत से बहुत घिन आती है, यहाँ तक कि इस घर का खाना भी नापाक होता है। मुझे इसलिए मैं कई कई दिन भूखा रहता हूँ, और फिर जब वो अरबी शेख घर आ जाता है और इसके होते हुए ऐसा कोई गंदा काम नहीं होता, तब इन दिनों मैं जैसे तैसे खाना भी जहर मार करता हूँ और थोड़ी बहुत नींद भी ले लेता हूँ। भाई, वो बहुत फाहिशा और जालिम औरत है। मुझे दबाकर रखने के लिए वो मुझ पर सख्त नज़र रखती है, और बहुत बार तो नशे की हालत में मुझे मारा भी है। मैं बहुत डरा हुआ रहता हूँ। इस घर में मुझे इसकी दी हुई कई ज़्यादा तनख्वाह भी अच्छी नहीं लगती कि इसके बदले में मुझे इस गलाजत और गंदगी में रहना पड़े, और फिर मालिक के आने पर सब कुछ ठीक रहा का झूठ भी बोलना पड़ता है। मैं वहाँ जितना वक्त रहा हूँ शदीद ज़हनी अजियत का शिकार रहा हूँ। ये लोग बहुत घटिया हैं। मर्द का कारोबार चमकाने और पैसा कमाने पर नाम है, और ज़्यादा वक्त घर से बाहर ही वो रहते हैं, और घर पर हों भी तो अपनी औरतों पर तवज्जो नहीं देते। और फिर इनकी औरतें इनकी गैर मौजूदगी में गैर मर्द बुलाकर अपनी हजरतें पूरी करती हैं, क्योंकि इनके मर्द खुद जो भी करें मगर अपनी औरतों के लिए बहुत सख्त मिजाज होते हैं, और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते। ये औरतें अपने कामों पर पर्दा डालने के लिए वो हम जैसे गरीब और कम उम्र हिंदू लड़के चुनती हैं, ताकि पैसों की लालच में हमारा मुंह बंद रहे और हम इनके किसी गलत काम में मुदाखलत भी ना करें। और कम उम्री की वजह से वो हमें दबाकर और डरा कर रखती हैं, मगर हर हिंदू लड़का भी ऐसा नहीं होता। मुझे ये सब बहुत शर्मनाक काम लगता है, और जब जब इनको गलत काम में मुलव्वस देखकर खामोश रहता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे चुप रहने की वजह से मुझे सज़ा मिलेगी, और मेरी माँ बहनें भी गलत हो सकती हैं, गलत काम कर सकती हैं। सिर्फ वही नहीं, जितनी भी अरब शेख की बीवियां हैं वो सब इस गलत और घिनौने काम में मुलव्वस हैं, और इन अरबों के घर रहना किसी सज़ा से कम नहीं होता। आप प्लीज़ मुझे वापस भेज दें। मुझे अब इस मुल्क में नहीं रहना। मैं जो यहाँ सोच कर आया था कि बहुत से पैसे कमाऊंगा और अच्छी ज़िंदगी गुजारूंगा, मेरा यह सपना टूट गया है। अब मुझे किसी सूरत यहाँ नहीं रहना। इसलिए अच्छा है कि मैं अपने ही देश में रूखा सूखा खाकर गुजारा कर लूँ। इतना बोलकर वो खामोश हो गया और अपने आंसू पोंछने लगा, जबकि इसके मुंह से सारी हकीकत सुनकर मैं जल्जले की जद में आ गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अनजाने में कैसी नौकरी कर रहा हूँ, और अब तक जाने कितने लड़कों को इस अजियत की भट्टी में झोंक चुका हूँ। मुझे इस मासूम लड़के पर बहुत तरस आया था, और ये सब कुछ सहने देखने के बाद वो बहुत छोटा था, जबकि ऐसा कुछ देखकर अच्छे खासे बड़ी उम्र के मर्दों को भी हालत ख़राब हो जाती है, जो शरीफ होते हैं और ऐसे कामों को गुनाह कबीरा समझते हैं। मैंने इस लड़के को तसल्ली दी और कहा, तुम मत करो, मैं तुम्हारी वापसी का जिम्मा खुद लेता हूँ, बल्कि अगर तुम चाहो तो तुम्हें कोई अच्छा काम भी दिलवा सकता हूँ, जिसकी तनख्वाह तो शायद इतनी ज़्यादा नहीं होगी, मगर कम से कम जिल्लत की ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। क्योंकि मुझे इस मुल्क में काम करते हुए काफ़ी अरसा हो गया था, इसलिए मेरी बहुत जान पहचान हो गई थी, और इस लड़के के लिए काम ढूंढना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मगर वो इस नौकरी से इतना बेसुकून रहा था कि मेरी इस ऑफ़र को फ़ौरन ठुकरा दिया और कहा कि वो बस वापस जाना चाहता है। तब मैंने इसको वापस भेजने का वादा करके इसको सुला दिया और ख़ुद सोच विचार करने लगा कि मुझे आगे क्या करना है। फिर 2 दिन बाद मैंने दोबारा इस अरबी शेख के घर पहुंच गया। मेरी तवक्को के मुताबिक वो अरबी शेख अभी तक घर वापस नहीं आया था, और इसकी बीवी घर पर अकेली थी, और यकीनन अपने जवान मुसलमान मर्द मुलाजिम की वजह से शदीद मुश्किल से दो-चार थी। जब भी मुझे देखते ही फ़ौरन इस मुलाजिम को कहा कि वो अपनी वापसी का सामान बांध ले, और मुझसे बोली कि मुझे इसका काम पसंद नहीं आया है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये लोग काम ना करने के बहाने ढूंढते हैं, तुम बस आज मेरे मुलाजिम को वापस भेजो, वो बहुत अच्छा काम करता है। मैं चूँकि इसकी असलियत से वाकिफ़ हो चुका था, इसलिए इसको कहा कि वो अब वापस नहीं आएगा, और ना ही तुम इसकी वापसी का मुतालबा करोगी। मैं तुम्हारी सारी असलियत जान चुका हूँ, और चाहूँ तो तुम्हारे शौहर को सब बता सकता हूँ, और तुम्हारा शौहर मेरी हर बात पर आंख बंद करके यकीन करेगा, क्योंकि वो मुझे अच्छी तरह से जानता है और मेरी बातों पर इसको एतबार भी है। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप इस लड़के का सामान मेरे हवाले करो, और अपने शौहर को खुद ही बोलना कि लड़का बहुत बीमार हो गया था, इसलिए इसको वतन वापस भेज दिया गया है,
اور اس کے بعد بھی مجھ سے کسی ہندو لڑکے کی فرمائش مت کرنا، تب میں بھی اپنا منہ بند رکھوں گا اور تمہارے شوہر کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میری بات سن کر اس عورت کا رنگ فک ہو گیا تھا اور اس نے چپ چاپ میری بات مان کر اس لڑکے کا سامان اور پاسپورٹ وغیرہ میرے حوالے کر دیا، اور پھر چند ہی دنوں میں وہ لڑکا اپنے وطن واپس لوٹ گیا۔ لیکن میں حیران ہو کر یہ سوچتا تھا کہ مسلمان عربی عورتیں یہ کس طرف چل پڑی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈرتی کیوں نہیں ہیں؟ نہ ان کو کسی کا خوف ہے، وہ بس ڈنکے کی چوٹ پر جو جی میں آئے وہ کرتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے شوہروں کو ہر چیز سے لا علم رکھا ہوا ہے اور ان کے شوہر ان کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں۔ وہ بظاہر ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو فل کنٹرول کیے ہوئے ہیں، ان پر سختی کیے ہوئے ہیں، ان کو گھر سے باہر بلا ضرورت جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں اور گھر کے اندر ہی ان کی ہر خواہش پوری کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ایسی عورتیں باغی ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کی طرف اپنے قدم بڑھاتی ہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ مسلم خواتین کیوں غلط راہ روی کا شکار ہو گئی ہیں۔ آخر کون سی چیز ان کو اپنے مذہب سے، اپنے شوہر سے اور اپنے گھر والوں سے بدگمان رکھتی ہے؟ حالانکہ ہمارے مذہب میں تو عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، ان کی آواز کا بھی پردہ لازمی قرار دیا ہے۔ یا یہ عورتیں مذہب کے نام پر بیڑیاں اپنے پیروں میں نہیں ڈالنا چاہتی اور یورپ کی عورتوں کی طرح آزاد اور خود مختار زندگی گزارنا چاہتی ہیں، کیونکہ یورپی عورتوں کا عربی عورتوں پر کچھ زیادہ چھاپ پڑ چکا ہے۔ عربی عورتیں ان سے بہت متاثر ہیں اور اپنی زندگی ان کی طرح آزادی کے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں۔ جہاں تک میرا تجربہ اور تجزیہ ہے تو مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کو معلوم کہ آخر عربی عورتیں کیوں اس حد تک چلی گئی ہیں کہ اپنی حدوں سے بھی تجاوز کر چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر کسی کی عزت محفوظ رکھے، سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان عورتوں کو نیک ہدایت دے، ان کو صحیح اور غلط کی پہچان دے، کیونکہ یہ ہماری اسلامی بہنیں ہیں، ہم ان کو اس طرح غلط راہ پر چلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، آمین۔